Participants are requested to wait for 2 more minutes. We'll be starting the session very soon. Thank you. Sir, am I not audible? अतर सिंह सर, मेरी आवाज आ रही है? आप म्यूटेड हो अभी भी। हाँ सर, आवाज आ रही है सर? I am getting you. Yeah. Yes sir, thank you sir. Rana sir, sir, are you receiving my? Am I audible? You are very much audible. Sir, thank you sir. Rana sir, I think we can start now if not many other participants. Hello. अतर सिंह साहब, आपकी आवाज एक बार बस माइक में या सिस्टम में चेक कर लें, से तो सुनाई पड़नी चाहिए। Very good afternoon to you, sir. Hope you are getting me. Yes, I think राणा साहब, वॉइस का फिर कोई इशू नहीं है। अतर सिंह साहब की आवाज बहुत साफ साफ सुनाई पड़ रही है, and with the Nasin faculty being around, I think we can start. Should we? राणा Yes जी? sir, we can. सर, राणा साहब का माइक का शायद कोई इश्यू है सर, ही इज नॉट एबल टू कम थ्रू।
राणा साहब शायद वॉइस इश्यूज की वजह कर पा रहे हैं, बट हमारे डीजीटीएस अहमदाबाद का कोई और ऑफिसर स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ डीजीटीएस अहमदाबाद, इज एनीबडी, कैन आई हिम? On behalf of NASIN and Directorate of Taxpayer Services, I am Reggie Matthew. Welcome to the session on Sevottam, and today we have with us Shri Rajesh Verma sir, ADG, DGTS Ahmedabad, Devendra Rana sir, Joint Director, DGTS Ahmedabad, and Atta Singh sir, our retired faculty from NASIN itself, and he will be conducting this session. With Devendra, with Rana sir's audio not being visible, not coming through, I will take on myself to request ADG sir to give to say a few words on the subject, sir. ADG sir, over to you, sir. Thank you, sir. The AGP, we tend to interact with each other. It's good to connect again here. Sir. First of all, let for this particular we both happen to be doctors by training. Tyagi and me. To attend good say they give I would also like to thank Mr. Atta Singh. He told he's the for NASIN, and he's been taking a lot of training sessions, and he's an expert on Sevottam, which I feel he has a session. So nice to have interaction, experience of service. Teaching. About this from C about so we can have we have good computer play the spiritual component of it. And second, which is the key mindset. In the last few years, we have seen the targets, the which is set to be realized. Gradually, we are raising the bar. I think that at times, the simple example, if I see if any bought 3 years back, 3-star meant something else. 3-star was some other standard. But every 2 years, they keep on changing to make it more. So even from private players, higher efficiency, better from the government servants also. I throw the
I hope we have a very fruitful and a session which is not merely theoretical. कि हमने एक सेशन किया कि ट्रेड भूल गए. एक ऐसा सेशन which we try to implement in our day-to-day working. With this, I hand over the mantle to you. Thank you. Thank you, sir, for your kind words. As you said, I have been associated in NASIN since 2009 to 2015. I was posted in NASIN as an inspector and as a. Would you like to start, please? Yeah. Yes, sir. Are you getting my voice, sir? Am I audible? Yes, sir. You're loud and clear, sir. So as sir has said, I was here in NASIN since 2009 to 15. I was on the postal distance of NASIN itself. Rather, NASIN was started in our tenure only. And even after 2015, when I was posted out from NASIN, I continued my association while in service from 15 to 20. And last year, August 31st, I just left the service on completion of 60 years on superannuation. And even now, I have been associated with the NASIN. And thanks to entire NASIN team, headed by Dr. Tyagi sir. With these words, I will start my first lecture with the DGTS. So this is a Sevottam under CBIC. How we go about. The first question comes in our mind, what are the key features of the Sevottam? So we can say the Sevottam framework was created by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, Government of India, in the year 2005. And thereafter, many studies have been conducted. And even before that, many studies were conducted of the international level. And two studies were main impacted in the Sevottam were the Charter of Mark of United Kingdom and Malcolm Medal of the United States of America. So these are the two models. Based on that, Sevottam in India was started, and thereafter many improvements have been done, and basic purpose was to improve the government organizations' services to the citizenry, or rather we can say key holders. Now, Sevottam feature or the framework, it works in 3 modules, and it has 3 criteria, rather we can say. And in that, there are 11 basic modules, elements, but subsequently many things have been added as per the requirement of the CBIC. So first module is known as the Citizen Charter, and this is the real, you can say, tooth or the bone of the same Sevottam. Without Citizen Charter, Sevottam has got no meaning. So the first module itself says there has to be some standards set for the service of delivery. And once the standards are set, and that has to be effectively implemented. So that's why I have made in the bold. So it will be coming in subsequent slides also. The second module comes is the grievance redress mechanism. That is we call it CP-GRAM, or the public grievance redressal system. So whenever there is a service and it is provided in a better way, then there is no need to have any kind of grievance mechanism. But what happens is we are all human beings. There are certain mistakes bound to happen. There are certain procedural errors bound to happen, and there could be certain communication gap also. To overcome all these things and really satisfy the consumer, and for us, the consumer, the stakeholders at the citizenry who have the trade affiliation with us, either as a manufacturer or as a trader. But now everything has been combined after GST. So they are either importer, exporter, or the trader, whatever we can say. So they have been connected with us. So we have to provide better service to them. That is number 1 module. And second module says, in case there is some difficulties being faced or there are some grievances arising out of the procedure, then that can be raised upon. And the third module says, to meet these first 2 requirements is the third module, that is the capability and capacity building of the organization itself. That is our CBIC. We all officers together combined, we make as a whole manpower or the working force, and to that we have to deliver the better service. And any organization, if we go, and whenever we talk about the service delivery system, then there has to be certain standards set in line
and those standards are to be met altogether. So that is known as excellence in service delivery. When we are capable enough, we have the capacity of infrastructure and the manpower, then definitely we can deliver the things in a better way to the environment which we are attached to. So these are the three modules. Number one, I repeat again. Number one, citizens charter. Number two, the CPgram. And number three is the capability and capacity building. And that is excellence in service. Now, it has got 7 steps of approach. And these 7 steps are known as, first is you have to define your services. What are the kind of services we are going to cater to the stakeholders or the traders? And once you define your services, then you have to identify your clients. Who are your clients? In our scenario, we can say those who are registered in the GST department, either in the state or the CGST or the state SGST, all together they come in service for us. CGST, they are coming directly to us, but state also, whenever we have certain investigations, we have sustained preventive cases, or even otherwise also many roles may be assigned to the state also that we are catering to. And then we have to identify the clients. Once we define the services, okay, these are the set of services we are going to do with the clients, XYZ clients, and then we have to set the standards also. And this set of standards and norms for each of the service has to be pinpointed, has to be in a systematic order so that we can meet those standards in time ahead. Then develop capability, and once the standards are set, we have to set certain capability of the individual officers, those who are working. So in case they are not capable or we don't have the capacity, then in that case the services cannot be delivered in a better way. So we have to adjust according to the requirement of the set standard, and then we have to provide our services with full capability and capacity. And once that is met, then perform to achieve the standards. Once role is defined, client is identified, standards are set, and we are all trained, then we have to perform to achieve those standards. So performance matters a lot. And once the performance is there, so there has to be some third person to monitor these things. Whatever I am doing, whether I am doing in the right way or not, whether the participants are listening me or not. In the same way, whether the traders or the clients are having any grievances. For that, we have to monitor the system. That means we are monitoring the performance itself against the set standards. So whatever standard we have set, are we meeting those deadlines? And that's the basic requirement of the monitoring system. And then comes the evaluation. Once we are monitoring, then definitely we are going to come to know either the system is working 100% fully, okay, or there are certain lacunas, or there are some technology changes. There may be certain improvements needed in the procedure, in the technology, in the training. So all these things we have to evaluate time to time, independent of the mechanism. And once that independent things are done in a better way, things can be brought forward. Okay, here are the lacunas, here are the mistakes, these are the things to be improved so that we can provide a better service to the clients. And then that has to be a continuous process of improvement based on our monitoring and evaluation. Once we have evaluated the things, we have monitored the things, and based on that, we have to continuously improve ourselves by way of our trainings, by way of better infrastructure, by way of awareness campaign with the clients, or procedural changes. Whatever happens, that we have to adhere to. I hope this approach is very clear. And this is what the whole Sevottam lies there. Now, assessment of service delivery. Any work assigned to anyone has to be one or the other time has to be assessed. And that assessment consists the main part of the Sevottam module consists of the criteria that ascertain well organization is tuned into the requirement of 3 components. जो Sevottam के 3 component हैं, उन component के साथ क्या हमारा system attune हो चुका है और वो जो criteria को क्या हम meet कर रहे हैं. So that is the basic assessment. So assessment framework
takes into account two kinds of questions. Number one, to assess basic compliance. तो पहला तो हमारा बेसिक कंप्लायंस करना है, किस चीज का कंप्लायंस, दो सेट स्टैंडर्ड्स, एंड दूसरा है एसेस क्वालिटी ऑफ प्रोसेस, जिस तरीके से, जिस मेथड के द्वारा, जिस प्रोसेस के द्वारा हम कंप्लायंस को मीट कर रहे हैं, क्या उसमें भी अचीवमेंट हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा है. एंड देन अगेन देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स और द बेसिक कंप्लायंस. नंबर वन, एज आई सेड, दैट इज द published and approved citizen charter. So there has to be certain citizen charter, meaning thereby we have set certain standard, and these are in the awareness of the citizen, awareness of the trade or our client. And then that has to be circulated amongst, and without circulation to the stakeholders, both sides, either departmental units or the delivery units outside the department as a client, it has to be circulated. Then appoint a senior officer as the director of public grievances, nodal officers. So until and unless there are public grievances or the nodal officers, things may not be brought into their knowledge. So to have independent body such as who can hear the grievances or who can act as a nodal officer in between the department and the citizen as a whole. So that means that is the appointment of a senior officer. And fourth is set up the task force for formulation. पहला आप देखेंगे कोई भी कानून को हम फॉर्मुलेट करते हैं, और जो फॉर्मुलेट हो गया हमारे स्टैंडर्ड, देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट दोज, और इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ वी हैव टू कंटिन्यूअसली रिव्यू द सिटीजन चार्टर. उसकी जो स्टैंडर्ड हमने आज सेट कर दिए, क्या वो सफिशिएंट हैं, क्या उनमें किसी प्रकार के इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, और वो करते करते दैट इज अगेन नोन एज कंडक्ट सेल्फ असेसमेंट विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिटीजन ग्रुप्स. एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, हम किसी और मुद्दे में ना जाते हुए एक मोटा रूप में समझें कि अगर कोई एक्ट या कानून ऐसा बना दिया जाए जो हम सबके लिए एप्लीकेबल है, बट वी आर नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस, बट वी आर नॉट टोल्ड अबाउट इट, and all of a sudden that has been imposed on us, तो उसकी repercussions बहुत बड़े होते हैं, सीरियस होते हैं. इसीलिए आपने देखा होगा किसी टाइम पे हमारे पूरे रूल्स होते थे, कंसल्टेंसी मशीन भी बहुत ज्यादा कार्य नहीं करती थी, लेकिन अभी हमारे ट्रेड के साथ में बार बार कंसल्टेंसी होती है. टीआरयू बार बार ड्राफ्ट रूल्स भेजता है या ड्राफ्ट चीजें भेजता है, उसके बाद आता है, पब्लिक हियरिंग होती है, मीटिंग्स होती है जगह जगह, और फीडबैक मिलते हैं, उसके आधार पर जाके हम उनके ग्रीवेंसेस को दूर करते हैं. सो दिस इज द सेल्फ असेसमेंट डिपार्टमेंट के सिटीजन चार्टर का, इन लाइन विद द सिटीजन जो क्लाइंट है उनके ग्रुप के साथ. पब्लिश ग्रीवेंस लॉजिंग इन रिड्रेस प्रोसीजर, तो हमारा एक ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए, उसको हम पब्लिश कर दें कि भाई हमारा ग्रीवेंस लॉजिंग का सिस्टम क्या है, और अगर किसी ने ग्रीवेंस लॉज किया है, कंप्लेंट फाइल की है, तो उसका निपटारा कैसे होगा, उसको हम रिड्रेस कैसे करें, सॉल्यूशन कैसे निकालें, और उसका टाइमलाइन क्या. बिना टाइमलाइन के कोई चीज कर देना पॉसिबल नहीं है. आज मैंने कंप्लेन कर दिया एंड वो कंप्लेन 4 महीने तक अगर पड़ा रहता है, तो वो कंप्लेन का डिले जितना हुआ, उसका जो परिणाम होगा वो नेगेटिव में जाने के चांसेस ज्यादा हैं, लिटिगेशन बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं. तो बेटर है हम डेडलाइन फॉलो करें. सो दिस इज व्हाट गिवन. नाउ की एलिमेंट्स, सी देयर वर टू थिंग्स. वन इज द BIS norms, BIS, और हम कहें इंडियन स्टैंडर्ड्स 15,700. 2005 was the base. So initially when we had two studies from the UK and the United Nations, United States of America, the two modules brought forward in 2005, and based on that Sevottam was started. And thereafter again it has been revised now in 2018. So it is now IS 15,700 2018. And what it says we have to focus the customer. जो हमारे कस्टमर हैं डिपार्टमेंट के, उनको हमें फोकस करना है. सिटीजन चार्टर हमारे पास होना चाहिए. सर्विस का जो क्वालिटी है उसका पॉलिसी भी क्वालिटी वाला होना चाहिए, और जो सर्विस ऑब्जेक्टिव हम डिलीवर कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट का भी सर्विस क्वालिटी होना चाहिए. यानी बोथ वे, पॉलिसी का भी क्वालिटी हो, और जो सर्विस हम रेंडर कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसकी भी अपनी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी हो.
कल को लोग कह रहे वाह क्या डिपार्टमेंट है, इतना अच्छा हमको सहूलियत दे रहा है, इतने समय से हमारे काम पेंडिंग रहते थे पहले और आज तुरंत हमारे कामों का निपटारा हो जाता है। देन सर्विस प्रोविजंस होना चाहिए, इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, मेजरमेंट एंड इंप्रूवमेंट वो होना चाहिए। देन देयर हैज टू बी सर्टेन सिंगल विंडो सिस्टम। मुझे याद है किसी टाइम पे हम जब रजिस्ट्रेशन कराते थे, आज मैं अगर एक कंपनी फॉर्म कर रहा हूं एंड उसके लिए मुझे सीएस से जाके बात करनी है, तो सीएस अपना रोल प्ले करेगा, सीए अपना रोल प्ले करेगा, और जो डीआईसी होते हैं या जीआईडीसी को जो मॉनिटर करने की एजेंसी स्टेट की होती हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वगैरह होते हैं, वो सब अलग अलग एजेंसी के बाद हमें भागना पड़ता था। देन बैंक में अकाउंट खोलने के लिए भी, अभी कल ही मैं एक कंपनी फॉर्म करने के लिए गया था, तो मुझे इतना अच्छा लगा सिस्टम की सारा कुछ एक ही जगह हो रहा है। मैं कल एक सीएस को मिला और मिलकर के मैंने कहा भाई मेरा ये रिक्वायरमेंट है, एंड इस साइड साहब ये चीजें 7-8 चीजें उसने गिना दी। ईपीएफओ में रजिस्टर आपका हो जाएगा, जीएसटी में रजिस्टर आपका हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट का करेंट अकाउंट खुल जाएगा, जो भी बैंक आप चूज करना चाहे एक साथ चूज करके हमें बता दें, और आपका कंपनी का फॉर्म हो जाएगा, एंड जहां भी हमें वो चैनल के द्वारा भेजना है वो हम भेज देंगे। सो कहने का मतलब जो सिंगल विंडो सिस्टम अभी जो लेके आए हैं बहुत ही अच्छा है, एंड धीरे धीरे करके हमारे डिपार्टमेंट में उन चीजों को हमने लागू किया है, उसका भी इंपैक्ट हमको देखने को मिलता है। इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन सेंटर, यहाँ दोनों चीज है। जो हमारा डिस्पैच सिस्टम पहले हुआ करता था, टपाल सिस्टम जिसको कहते हैं, आज काफी इंप्रूवमेंट उसमें हुआ है, दो अभी भी सफिशिएंट नहीं है। ऐसे बिकॉज मैं मेरी आंखों से जब देखता हूं तो मुझे लगता है अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है एरियाज में। और उसके बाद में जो फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, लाइक सेवोत्तम का जीएसटी सेवा केंद्र एक बना दिया, एंड जीएसटी सेवा केंद्र के जो नॉर्म्स हैं, सेवोत्तम के जो नॉर्म्स हैं, उसके मुताबिक उस सेवा केंद्र का अपना एक वेबसाइट होना चाहिए। अगर उनका खुद का इंडिपेंडेंट नहीं है तो कमिश्नरेट का वेबसाइट हो, वहां उनको अलग से वो डील कर सके, अपने मैटर को डाल सके। लेकिन मैं ये देखता हूं अभी भी कुछ कमिश्नरेट ऐसी हैं जहां पे उनका खुद का वेबसाइट नहीं है। सो दैट शोज कि अभी भी कहीं हम पीछे हैं सिस्टम में। जो सेवोत्तम कहता है भी हमारे पास इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन सेंटर होना चाहिए, लेकिन जो फिजिकल देखे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जब डिजिटल की बात करते हैं वहां भी हर कमिश्नरेट का अपना वेबसाइट होना चाहिए, और जो सेवा केंद्र हैं उनको भी उसको एक्सेस इजीली मिलना चाहिए, फिर सेवा केंद्र में जो चीजें होती हैं वो ऑनलाइन भी लोगों को दिखाई पड़े। नाउ related with the Sevottam, very important aspect is the SQM, that is the Service Quality Manual. The whole procedure of the Sevottam or the Citizen Charter has been enumerated, has been focused as a process in the Service Quality Manual. And this manual is very important. Actually, every officer of the department must read this SQM. Once we read the SQM, entire concept of our Sevottam will be very crystal clear. वो they have set many examples also. They have mentioned the resource person क्या होगा, कितने मैन पावर होंगी, कितने समय में किस कार्य को किया जाएगा। तो जो जो सिटीजन चार्टर में दिए गए हमारे वर्क्स में ये कार्य के स्टैंडर्ड सेट हमने किए हैं वो सब एसक्यूएम में आपने मिल जाएगी। तो ये एक इंडियन स्टैंडर्ड है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, और ये हमारे डिपार्टमेंट ने एज ए सीबीआईसी अडॉप्ट किया हुआ है। और सीबीआईसी के जो टैक्स पेयर्स पोर्टल है, आप देखेंगे हमारा वेबसाइट पे cbic.gov.in, वहां पर टैक्स पेयर सर्विसेज का अलग से पोर्टल है और उसमें फोल्डर है, उसमें जब हम खोलेंगे जाकर के तो हमें ये एसक्यूएम मिलेगा, सिटीजन चार्टर मिलेगा, ग्रीवेंस सिस्टम मिलेगा। तो एज होल सेवोत्तम का सारा कुछ निचोड़ वहां पे है। देन व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ एसक्यूएम? की फीचर जो दी गई है सिस्टम में, दैट इज एस्टेब्लिश सर्विस क्वालिटी पॉलिसी। तो पहले तो हमारा एक सर्विस क्वालिटी का पॉलिसी होना चाहिए। देन सेट सर्विस ऑब्जेक्टिव्स। यहां आपको लग रहा होगा पीछे भी मैंने कुछ बातें कही, ये रिपीट होंगी, बट रिपीट भी जरूरी है। पहले एक जनरल टॉक था और यहां हम एसक्यूएम के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो यहां सर्विस क्वालिटी का पॉलिसी होना चाहिए एस्टेब्लिश। फिर सर्विस की जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उनका सेट होना चाहिए, हमारे क्लाइंट या कस्टमर को हम डिफाइन करें और ईच सर्विस को हम स्टैंडर्ड सेट करके डिफाइन करें। देन उसके बाद में जो हमारा ऑपरेटिव प्रोसीजर है ईच सर्विस मॉड्यूल का, ईच सर्विस स्टैंडर्ड का, वो हम डिफाइन करें। एंड उसके बाद सेट प्रोसेस कंट्रोल्स फॉर द इफेक्टिवनेस इन सर्विस डिलीवरी।
तो हमारा सर्विस डिलीवरी जो हो रहा है, जो रियल में जिसको हम कहते हैं उत्तम सेवा जो हम दे रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं जो इफेक्टिव कंट्रोल है वो होना चाहिए प्रोसेस का. somebody has to be in control of it कि प्रोसेस ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है. देन बैलेंस स्टैंडर्ड के साथ में और विद लोकल फ्लेक्सिबिलिटी. तो स्टेट स्पेसिफिक के साथ में कुछ ऐसा है कि भाई यहाँ पे ये चीजें हमको फ्लेक्सिबल भी रखनी है, तो भी हमको स्टैंडर्ड को एडजस्ट करते हुए बैलेंस बना के चलना चाहिए. एंड देन बिल्ड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एज पर IS 15700 एंड 2018. आप देखो ये क्वालिटी का सिस्टम हमारा SQM में दिया गया है. नाउ सेवोत्तम डिफाइंड, मुझे ध्यान है वर्मा सर ने जस्ट अभी कहा था कि उत्तम सेवा, सर्विस एंड एक्सेलेंस. तो यहां हम हिंदी में अगर देखें सेवोत्तम वर्ड को, सेवा और उत्तम दोनों को कंबाइन करके सेवोत्तम वर्ड बना है. तो पहले हमारा जो माइंड सेट था दैट वाज द एडमिनिस्ट्रेशन सेट, और अभी वो चेंज हो गया दैट इज टू द सर्विस साइड. टू द टेक्निकल वर्ड वी से देन वी गवर्नमेंट इंटेंड टू मूव फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट या एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट टू द सर्विस ओरिएंटेशन ऑफ द सर्विस डिलीवरी टू द पब्लिक. सो वो जो स्टैंडर्ड हमारा चेंज हुआ है, परसेप्शन चेंज हुआ है, हमारी सोच में एक बदलाव आया है, हमारे कार्य प्रणाली में बदलाव आया है, एंड एज ए होल अल्टीमेट बेनिफिट क्लाइंट को भी हो रहा है, हमको भी हो रहा है एज ए डिपार्टमेंट, एज ए होल नेशन को भी हो रहा है. सो दिस इज सर्विस डिलीवरी एक्सेलेंस मॉडल बेस्ड ऑन IS 15700 2005 में भी था, एंड उसके बाद में रिवाइज किया सर्टेन चेंजेस के साथ 18 में, और वो CBIC ने उसको कमिट किया है, यस, कमिटेड टू एक्सेलेंस इन टैक्स पेयर सर्विसेज, एंड DGTS इज द नोडल एजेंसी इन द डिपार्टमेंट through which everything has to be implemented down the line. This is a wide range of clientele segmentation entails that we have a standard service delivery system that caters to need of all based on transparency, accountability, reliability, responsiveness and empathy in taxpayer functions of the CBIC. बहुत ही एक एक वर्ड को हम अगर मीनिंग में देखेंगे बहुत बड़ा मायना रखता है. मैं यहाँ ये चीज कहना चाहूंगा, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेंसी एंड रिलायबिलिटी, रेस्पॉन्सिवनेस, ये सब चीजें कंबाइन टुगेदर अगर हो जाती हैं देन रियल में वी आर डूइंग ए ग्रेट सर्विस टू द नेशन. नाउ व्हाट वाज द स्टेटस एंड व्हाट इज नाउ. हम देखेंगे जब 2005 में हमने ये मॉड्यूल अडॉप्ट किया था सेवोत्तम का, उस टाइम में हमारे डिपार्टमेंट की जो 2016 की रिपोर्ट है 31 मार्च 2016 में CBIC वेबसाइट पे वो अपडेटेड है. 60 फील्ड फॉर्मेशंस के साथ में ये सर्टिफिकेशन हो चुका था, और भी काफी बाकी रह गई थी जहां पे वो सिस्टम चल रहा था. एंड सब्सिक्वेंटली दे वर कमिटेड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजन चार्टर. ओवर द पीरियड GST रिजीम आ गया, तो सिटीजन चार्टर में बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत पड़ी. सिटीजन चार्टर को रिवाइज किया गया और स्टेक होल्डर के साथ में कंसल्टेशन करने के साथ रिवाइज किया, और रिवाइज होने के बाद नाउ द न्यू सेट ऑफ IS स्टैंडर्ड हैज कम 15700 in 2018, and the certification is as per the SQM uploaded on the website of the CBIC. SQM contains the entire procedure. Now the very crux or the important part is the citizen charter. So any kind of activity we do, we have to have certain focus, certain vision. Yes, this is my goal, this is my vision. तो सिटीजन चार्टर ने जो गोल सेट किया है, विजन सेट किया है, दैट सेज पार्टनरिंग इन द इंडिया सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ. एक एक वर्ड हम देखेंगे, सोशियो भी है, इकोनॉमिक भी है, एंड दोनों का ग्रोथ हो, और ऐसी पॉलिसी बनाएं, और वो पॉलिसी जो बने वो हम इंडिया की ग्रोथ के साथ पार्टनर बन के करें. सो दैट इज हाउ एज ए CBIC इज पार्टनरिंग विद द इंडिया सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ. सो वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट. We are in such a very good department where we have to play our own role in socio-economic growth of the country. And based on that, we have to formulate the policies, we have to implement the policies, and these policy implement has to be progressive. Continuous सुधार के साथ साथ indirect tax में progress से होती रहे, adopting stakeholder centric approach.
हमारा जो अप्रोच है स्टेक होल्डर के ध्यान में रखते हुए होना चाहिए. एंड हु आर आवर स्टेक होल्डर्स? These are the clients or the traders who are doing business with us, who are registered in GST or central excise or in customs doing import and export business. And then again, very important part, protecting the frontiers. Yeah, it's a very crucial word here, protecting the frontiers. I myself being an ex-serviceman, I know the concept of border management, protecting the frontiers. In general parlance, it is said these are the defense forces or the paramilitary forces, those who are manning the frontiers of the nation or the country. And we don't have any role. But if you see deeply, we have got very, very vital role. Under the Citizen Charter, it is clearly mentioned. This is one of our role. We have to protect the frontiers. And that is how anti-smuggling activities, जो हम कर रहे होते हैं, स्मगलिंग को रोकने के लिए हमारी प्रिवेंटिव शाखाएं होती हैं, हमारे बॉर्डर में चेक पोस्ट होती हैं, हमारे सी में पेट्रोलिंग हम करते हैं कोस्ट गार्ड के साथ में, वो सारा हमारा किसी न किसी रूप में, या हम एयरपोर्ट पे या सी पोर्ट पे कहीं भी लैंड कस्टम्स में हैं, यहाँ तीनों प्रकार का, गुड्स का भी, सर्विसेज का भी और ह्यूमन ट्रैफिक भी, ये सबको हम देखते हैं आना और जाना, और वो भी कंट्रोल हमारे हाथ में है. एंड दैट इज हाउ वी आर प्रोटेक्टिंग द फ्रंटियर्स. Now we have set the vision. Okay, these are the target. This is the vision. We have to meet it, and to meet that vision, we have to have certain mission. And the mission says it has to be very robust indirect tax administration system. At the same time, have effective border control administration. जिसके अंदर ऐसा हो, सिंपल एंड प्रिडिक्टेबल लॉ हो. आप देखेंगे अगर आज एफडीआई हमारे यहाँ में आकर के बिजनेस कर रहे हैं, या मैं भी अगर मेरी बिजनेस कुछ इंडिया के अंदर ही करना चाहता हूं बीइंग इंडियन, तो मेरे पास में ये तरीका अगर पहले से मुझे पता हो, अरे यार लॉ बहुत सिंपल है और हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो दैट मीन्स आई कैन स्टार्ट माय ओन बिजनेस. एंड दैट इज हाउ सिंपल एंड प्रेडिक्टेबल लॉ होना चाहिए, फेयर एंड जस्ट प्ले होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, एंड देन इट शुड बी ड्रिवन विद द टेक्नोलॉजी. टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होता रहता है, ठीक वैसे लॉ में भी चेंजेस आते रहते हैं, वैसे हमें भी हमारे पॉलिसीज को उस ढंग से सेट करना है, यूजर फ्रेंडली भी हो, टेक्नोलॉजी एकदम कन्वीनियंट हो, इजीली ट्रांसमिट हो जाए, क्लिक ऑफ द माउस पे चीज अवेलेबल हो जाए, एंड डिजिटल सिस्टम को फॉलो करें. एंड विद दैट देयर शुड बी सम ट्रस्ट बेस्ड, एक हमारा इंक्रीजिंग ट्रस्ट हो वॉलंटरी कंप्लायंस के लिए. जो डंडा हम चलाते थे पहले, मैं डिपार्टमेंट 94 में ज्वाइन किया, मैंने उस टाइम कस्टम्स में भी देखा, एक्साइज में भी देखा, सर्विस टैक्स में देखा, सीजीएसटी भी अभी जाके देखा लास्ट में. लेकिन धीरे धीरे बहुत चेंजेस हुए हैं. जब मैंने ज्वाइन किया तब में लेकर के इवन 2000 के बिगिनिंग में बहुत सारे चेंज आ चुके थे. 2002 में, 2009 में, 2012 में अगेन चेंजेस होते गए लाइफ में आकर के 17 के अंदर जो चेंजेस आए, दीज आर वेरी यू कैन से गुड फॉर द नेशन. कहीं कहीं वॉलंटरी कंप्लायंस नहीं हो रही है, कहीं कहीं रूल की कमी हो सकती है, उनको गवर्नमेंट सुधारा कर ही रही है टाइम टू टाइम. बट हमारा जो ट्रस्ट है ट्रेड के प्रति वो इनकरेज होना चाहिए. एवरी टाइम हम किसी को ये तो तुम तो चोर हो, तुम तो चोरी करते हो टैक्स की, वो माइंडसेट हमें निकालना पड़ेगा. पहले हम सबको अच्छा देखें, उनको मान के चले भाई आप कंप्लायंस दीजिए, और हमारी इंटेलिजेंस के द्वारा अगर हमको गलत करता है कोई तो उसको हम जरूर पकड़े. देन प्रोटेक्ट्स ऑनेस्ट टैक्सपेयर्स राइट्स. अब आप देखेंगे सारे लोग चोर नहीं हैं, बिजनेस में काफी लोग ऐसे भी हैं जो ईमानदारी के साथ अच्छी बिजनेस कर रहे हैं. सो जो चोर हैं उनके साथ में जो चोर नहीं हैं वो हरास ना हो, तो उनके जो राइट्स हैं उनको हम ऑनेस्ट टैक्सपेयर्स के को हम सेव करते चले. फैसिलिटेट्स ट्रेड विद द रिस्क बेस्ड इन्फोर्समेंट. आप देखेंगे यहाँ पे हम ट्रेड को फैसिलिटेशन भी दे रहे हैं, सुविधाएं भी दे रहे हैं, और एट द सेम टाइम वो सुविधाएं कैसी होनी चाहिए, रिस्क बेस्ड इन्फोर्समेंट होना चाहिए. लाइक आईसीडी में या पोर्ट्स में हम देखते हैं कि हर किसी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गुड्स एग्जामिन नहीं होता है, तो वी हैव टू गो एज पर द सिस्टम, और सिस्टम में जो जिसने आरएमएस में पकड़ लिया उसी का हम करेंगे चेक. सो दैट इज हाउ रिस्क बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज इंप्लीमेंटेड. इनेबल्स लेजिटिमेट मूवमेंट ऑफ द पीपल. जो मैंने कहा तीनों प्रकार से, लोगों का आना जाना, गुड्स का आना जाना और सर्विसेज का आना जाना, इनका लेजिटिमेट जो मूवमेंट है वो आराम से होता रहे, अनइंटरप्टेड फ्लो होता रहे.
देन सप्लीमेंट द एफर्ट्स, हमारे जो एफर्ट्स हैं नेशनल सिक्योरिटी के, उनको भी हम सप्लीमेंट करें बाय मैनेजिंग द फ्रंटियर्स एंड कंटिन्यूअली इन्वेस्ट इन द कैपेसिटी बिल्डिंग। ऐसा इन्वेस्टमेंट, आप देखेंगे हमारा डिपार्टमेंट हमको तनख्वाह देता है, ठीक है, लेकिन हमारे ऊपर दूसरी भी बहुत पैसा खर्चा करता है, एंड दैट इज ए इन्वेस्टमेंट ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग। अगर आप आज मुझे सुन रहे हो तो डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ तो खर्चा कर ही रहा है, और उसके सामने आपको एक ट्रेनिंग दी जा रही है। वैसे ही जो हमारे डिपार्टमेंट की इतनी सारी ट्रेनिंगें होती हैं, तो ट्रेनिंग का भी एक अपना महत्व है, वो कैपेसिटी को एनहेंस करते हैं, कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी आर मोर कैपेबल ऑफ डिलीवरी इन ए बेटर वे, एंड दैट शुड बी, एक वर्ड और यूज किया है, हमारा प्रोफेशनल भी हो। आई जस्ट रीड द लास्ट लाइन, कंटिन्यूअली इन्वेस्ट इन कैपेसिटी बिल्डिंग टू अचीव प्रोफेशनल एंड इथिकल एक्सीलेंस। दोनों एक्सीलेंस होना चाहिए, प्रोफेशनल भी हो और इथिकल भी हो। जो हमारे मोरल वैल्यूज हैं, जो ट्रेड की इथिक्स हैं, वो भी हम कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली एक्सीलेंस उसमें भी लाते रहे। सो दिस इज द मिशन। नाउ विजन इज सेट, मिशन इज सेट, नाउ व्हाट इज आवर मोटो एंड आवर कोर वैल्यूज। जो भी लास्ट लाइन मैंने पढ़ा था, इथिकल वैल्यूज, व्हाट आर दोस? आप देखेंगे हम किसी भी अधिकारी के यहाँ ऑफिस में, चेंबर में जाते हैं तो यहाँ ज्यादातर जगहों में लोगो लगा रहता है, आवर मोटो देश सेवा कर संचय। दैट मीन्स टैक्स कलेक्शन इन सर्विस ऑफ द नेशन। सो व्हाट टैक्स वी आर कलेक्टिंग? इट इज नॉट जस्ट कलेक्शन, बट इट इज सर्विस टू द नेशन। एंड द कोर वैल्यूज आर integrity and judiciousness with impartiality and fairness, courtesy and understanding, objectivity and transparency, uprightness and conscientiousness, जिसको हम कहते हैं कर्तव्य निष्ठा, and promptness and efficiency। आप ये शब्दों को एक एक का अगर मीनिंग हम देखते हैं, तो मैं पाता हूं अभी भी डिपार्टमेंट में कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है इन चीजों में। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने डिपार्टमेंट छोड़ दिया है, आज मैं डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा हूं। नो, ब्लेम नहीं कर रहा हूं। मैं भी डिपार्टमेंट रहते हुए ये चीजों को देखा और आज भी देख रहा हूं, बिकॉज एवरी टाइम देयर इज चांस फॉर इंप्रूवमेंट। पहले से मैंने जो एग्जांपल दिया, 94 मैंने ज्वाइन किया, बहुत सारा को चेंजेस थे, होते गए इंप्रूवमेंट मैंने बहुत देखा है। बट अभी भी अगर हम ये मान के चलते हैं कोई भी चीज में, नाउ सैचुरेशन आ गया, इंप्रूवमेंट जितना होना था हो गया, नाउ नो मोर इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, देन माय डियर सर्स वी कैन नॉट इंप्रूव। सो देयर हैज टू बी ऑलवेज ए स्कोप। ग्लास कभी फुल नहीं, ऐसा मान के चलें कि ग्लास खाली है, उसमें कुछ और डाल सकते हैं, पानी या द्रव। वैसे कि वैसे ही हमें माने हमारी जो कोर वैल्यूज हैं वो अभी पीक पे नहीं आई हैं, हमें कोर वैल्यूज को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है, एंड दैट इज हाउ दैट हैज टू बी इम्पार्शियलिटी एंड फेयरनेस होना चाहिए, कर्टसी एंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी एंड ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, अपराइटनेस एंड कर्टियसनेस होना चाहिए, कॉन्शियसनेस होना चाहिए, प्रॉम्प्टनेस एंड एफिशिएंसी को टारगेट करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। देन ये सब करने के साथ साथ वी एक्सपेक्ट सर्टेन थिंग्स फ्रॉम द ट्रेड, फ्रॉम द जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। व्हाट वी एक्सपेक्ट इन जनरल, तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई, एंड वो कोई गलत नहीं है। एक्सपेक्टेशन ट्रेड के भी हमारे प्रति होते हैं, हमारे भी ट्रेड के प्रति होते हैं। तो जो एक्सपेक्टेशन हम रख रहे हैं, तो क्यों नहीं हाई स्टैंडर्ड बना के रखें, लेट देम मीट दैट। अगर नहीं करेंगे तो वी हैव टू टेक सर्टेन एक्शंस। सो व्हाट आर दोस? अपहोल्ड एंड रेस्पेक्ट द लॉ ऑफ द लैंड। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि जो स्टेक होल्डर हमारे साथ में हैं, वो हमारी धरती के जो कानून हैं, कायदे हैं, उनका वो पालन करेंगे, जो हमारे संबंधित हैं, सीडीआईसी से रिलेटेड जो चीजें हैं। वॉलंटरली डिस्चार्ज ऑल टैक्स लायबिलिटीज, स्वयं स्वेच्छा से जो भी उनकी देनदारी है वो निपटारा करें, अपने आप चुकता करें। फुलफिल देयर ड्यूटीज एंड लीगल ऑब्लिगेशन इन टाइम, अपनी ड्यूटी भी पूरा करें और लीगल ऑब्लिगेशन जो दिए गए हैं उनको समय पर निर्वहन करें। बी ऑनेस्ट इन फर्निशिंग इंफॉर्मेशन, कल को ऑडिट के द्वारा, इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए ट्रेड के द्वारा, तो ट्रेड को प्रोवाइड करना चाहिए। तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं उससे। बी कोऑपरेटिव एंड फोर्थराइट इन इंक्वायरीज एंड वेरिफिकेशंस, किसी भी प्रकार का हम वेरिफिकेशन करते हैं आजकल, फिजिकल वेरिफिकेशन प्रेमाइसेस का हो या सर्च हो या कोई इंक्वायरी हो, ये सब में कॉपरेशन हमें ट्रेड का मिले, ये हम उम्मीद करते हैं। अवॉइड अननेसेसरी लिटिगेशन, और हम ये भी उम्मीद करते हैं ट्रेड से कंसल्टेंसी के द्वारा
जो चीजें इंप्रूव करके सेटलमेंट की जा सकती हैं, दैट शुड बी सेटल्ड रादर देन गोइंग फॉर द लिटिगेशन इन एवरी मैटर। सो इससे उनका भी टाइम बचेगा, रिसोर्सेज बचेंगे और डिपार्टमेंट का भी बचेगा। तो दीज आर द एक्सपेक्टेशंस वी हैव फ्रॉम द क्लाइंट्स। नाउ वी हैव सेट सर्टेन स्टैंडर्ड्स एंड दीज स्टैंडर्ड्स आर मेंशन्ड इन सिटीजन चार्टर, और वहां से आकर के हमारे जो एसक्यूएम हैं उसमें सिटीजन चार्टर को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, और वहां से जो मेन आइटम्स हैं दीज आर द वन। तो व्हाट आर द की सर्विसेज एंड व्हाट इज द टाइमलाइंस, आई विल जस्ट रीड आउट। Acknowledgement of all written communication including declarations, intimations, applications and returns। तो ये जो रिटन कम्युनिकेशन हमारे पास आता है क्लाइंट से, अब किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सीजीएसटी में हो या कस्टम्स में हो या एक्साइज में हो, क्योंकि एक्साइज आज भी थोड़ा बहुत तो है बाकी, तो ये सब में जो हमारा टाइमलाइन है दैट इज 3 days। अगर यही चीज मैनुअल है तब 3 days है। नाउ एक्नॉलेजमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन रिसीव थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल है, देन इट इज इमीडिएट। फिर हम उसमें सिस्टम में ऐसा कुछ जगलरी नहीं करें कि वो इमीडिएट रेस्पॉन्स अगले को एक्नॉलेजमेंट के रूप में ना जाए, जाना चाहिए। ऐसा सिस्टम हमारा आईटी के द्वारा बने, इनेबल हो कि जैसे ही फाइल किया तुरंत उनको रिसीव पहुंच गया, यस आपने फाइल किया, हमको मिल गया है। बाद में उसको स्क्रूटिनी अलग होती है, वो यहाँ कवर नहीं हुआ है। देन कन्वे डिसीजन ऑन द मैटर्स इंक्लूडिंग डिक्लेरेशंस और असेसमेंट विद इन 15 days। तो जो भी हमारा डिसीजन होता है उन मुद्दों पर जो पार्टी ने हमको फाइल किए हैं, तो हमको 15 दिन के अंदर उनको कम्युनिकेट करना चाहिए। देन डिस्पोजल ऑफ द रिफंड, अच्छा 15 दिन का यहाँ जो भी डेडलाइन दी गई, मेरा ये मानना है कि डेडलाइन इज द लास्ट एंड, लेकिन उसके पहले हम डिलीवरी कर दें 15 दिन के बजाय हम 5 दिन में या 4 दिन में 2 दिन में कम्युनिकेशन कर दें, दैट विल बी फार फार बेटर। सो दैट द रियल सर्विस। तो हमें टारगेट लास्ट डे तक वेट ना करने के बजाय दैट द डेडलाइन, उसके पहले निष्पादन करें तो और भी अच्छा रहे। डिस्पोजल ऑफ द रिफंड क्लेम, अब यहां पर रिफंड क्लेम 2 प्रकार से हमारे पास आ सकते हैं। ये जीएसटी का हो सकता है, एक्साइज का हो सकता है और कस्टम्स का हो सकता है। तो कस्टम्स का अगर रिफंड क्लेम कोई है तो 90 days फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन, अगेन द वर्ड एप्लीकेशन के साथ में प्रीफिक्स कर दिया गया कंप्लीट वर्ड। कंप्लीट एप्लीकेशन का मतलब है लॉ के अंदर जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट दिए गए, वो सारा प्रॉपर वे में पार्टी अगर जमा कराती है तो उस कंप्लीट एप्लीकेशन से 90 days के अंदर कस्टम्स का ड्यूटी का उसको रिफंड हमें दे देना है। सिमिलर वे में जीएसटी का अगर रिफंड है और एक्साइज भी उसी का पार्ट हो गया, बिकॉज जो चीज सीजीएसटी में एप्लीकेबल है वो एक्साइज में भी है। तो यहां पर 60 days ऑफ द रिसीव्ड ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन है। दोनों में फर्क है, कस्टम्स में 90 days है और जीएसटी या एक्साइज में 60 days। नाउ ड्रॉबैक, आफ्टर फाइलिंग द मैनिफेस्ट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग ऑफ द डिक्लेरेशन 7 days। अगर ड्रॉबैक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा मैनिफेस्ट फाइल हो रहा है, क्लेम फाइल हो रहा है, तो 7 दिन में हमें कर देना है उसको। और अगर ऐसा है आफ्टर फाइलिंग द पेपर क्लेम अगर हो रहा है, किन्हीं कारणों से अगर पॉसिबल नहीं है ऑनलाइन फाइल करना, या सर्टेन एरियाज में अभी भी किन्हीं कारणों से ऑनलाइन एप्लीकेबल नहीं हो रहा है या नॉट वर्किंग है और वहां मैनुअल चालू किया है। फॉर एग्जांपल 2001 में सबको मालूम है बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, तो दैट टाइम आई वाज पोस्टेड इन गांधीधाम और उसके बाद मेरा पोस्टिंग कांडला में भी हुआ कस्टम हाउस में। दैट टाइम आई सॉ कि इतना सारा नुकसान प्रॉपर्टीज का चारों ओर से हुआ था और उसके बाद हमारा ईडीआई सिस्टम ही कोलैप्स हो गया। तो अल्टीमेटली सारी चीजें फिजिकल मोड में करने लगे। तो वैसे ही वैसे अगर कोई सिचुएशन भगवान ना करे कोई कैलेमिटी इस तरह की आए, बट आईटी है, कभी आईटी का फेलियर भी हो सकता है। सो एनीवे बोथ ऑप्शंस यहाँ पे मैनुअल में दिए गए हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तो 7 दिन में हम दे दें उनको ड्रॉबैक का रिफंड रिमिटेंस, और अगर मैनुअल है तो 15 दिन में हम दे दें। कार्गो रिलीज टाइम, यहां देखिए बहुत सारा, बिकॉज मैं भी कस्टम हाउस में काम किया हूं, प्रिवेंटिव में भी काम किया हूं, उस साइड में डीपी सेक्शंस में, तो मैंने देखा बहुत सारा कई बार डिले होता है कार्य का। और यहाँ डेडलाइन हमें दे दी गई तो डेफिनेटली अगर ये डेडलाइन से हम रिलीज नहीं कर पाते हैं कार्गो को, तो कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट में कंप्लेन होने के चांसेस हैं। तो हमें वो अवॉइड करना है, कंप्लेन किसी प्रकार की ना हो। तो कार्गो रिलीज टाइम इन केस ऑफ एक्सपोर्ट्स, अगर बाई सी जा रहा है तो इट इज 48 hours,
अगर यही कार्गो बाय एयर है, आईसीडी के द्वारा है, या लैंड कस्टम सीएसएस के द्वारा है, एलसीएस के द्वारा, देन इट इज 24 आवर्स। और अगर इंपोर्ट हो रहा है सी के द्वारा, इंपोर्ट में थोड़ी फॉर्मेलिटी ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से 72 आवर्स का टाइम दिया गया। और वही इंपोर्ट अगर एयर कार्गो या इनलैंड कंटेनर डिपोट से हो रहा है 48 आवर्स है। लेकिन अगर इंपोर्ट लैंड कस्टम स्टेशन के द्वारा हो रहा है, एलसीएस के द्वारा, जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज से बॉर्डर लगते हैं, हमारे एलसीएस हैं उन जगहों से, देन इट इज 24 आवर्स। जीएसटी रजिस्ट्रेशन 3 दिन का टाइम दिया गया कंप्लीट एप्लीकेशन से। अमेंडमेंट अगर किसी ने अप्लाई करना है, किया है, तो विद इन 15 डेज। अगर कोई पार्टी अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करती है जीएसटी में, तो इट इज 30 डेज टाइम दिया गया। और एडवांस इंटीमेशन बिफोर अंडरटेकिंग द ऑडिट वर्क, दैट इज मिनिमम 15 डेज। अगर मैं किसी यूनिट का ऑडिट करने जा रहा हूं एज ए ऑडिटर, तो मेरा फर्ज है कायदा के मुताबिक मुझे ट्रेडर को या मेरे क्लाइंट को, जहां मैं ऑडिट करने वाला हूं, एसईसी को 15 दिन पहले मैं जानकारी दूं, इंटीमेशन दूं उनको, म्यूचुअल डेट सेट करूं, एंड उसके बाद मैं जाऊं। ऑडिट मैंने कर लिया वहां पे जाकर के, अगर वो ऑडिट हमारा जीएसटी का है, तो जो कमेंसमेंट ऑडिट का हुआ 90 डेज में मुझे उस ऑडिट को पूरा भी करना है। ऐसा नहीं है कि मैं साल 10 साल तक उसको बढ़ाता रहूं, डेडलाइन दिया गया है। कस्टम ऑडिट अगर मैं कर रहा हूं, देन विद इन 30 डेज मुझे वो पूरा कर लेना है। इंटीमेशन ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, जब मेरा पूरा कंप्लीशन हो गया, तो कंप्लीट ऑडिट होने के बाद आई हैव टू फाइल द रिपोर्ट, और फाइल होने के बाद में विद इन कंक्लूजन जो ऑडिट का हो गया, एमसीएम की मीटिंग हमारी हो गई, दैट मीन वो रिपोर्ट मेरी फाइनल हो गई, उसके विद इन 30 डेज जो मेरा कंक्लूजन हुआ ऑडिट का, वहां मुझे पार्टी के सामने फाइंडिंग इंटीमेट कर देना चाहिए। यहां भी सुधारे की जरूरत है कि शायद अभी भी सभी जगह ये इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। रिलीज ऑफ सीज गुड डॉक्यूमेंट्स एंड थिंग्स इफ नॉट रिक्वायर्ड बाय द डिपार्टमेंट। यहां देखिए वेरी क्लियर कट लिखा हुआ है, जो भी हमने डॉक्यूमेंट सीज किए हैं उनको हमें रिलीज करना है जब वो डॉक्यूमेंट आर नो मोर रिक्वायर्ड विद अस। और नो मोर रिक्वायर्ड कब होगा? अगर किसी मैटर का हमारा इन्वेस्टिगेशन हो गया है, उसके बाद हमने शोकाज नोटिस दे दिया है, शोकाज नोटिस देने के बाद विद इन 30 डेज हमें वो डॉक्यूमेंट पार्टी से जो लाए हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या जो भी हम लेके आए उनके यहां से, वो हमें रिकॉर्ड उनको देना चाहिए। हमको अगर रिक्वायरमेंट है, वी कैन मेक द जेरॉक्स कॉपी एंड वी कैन कीप इट विद अस। इस पॉइंट पे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं, बिकॉज प्रैक्टिकली एग्जाम्पल मैंने झेला है यहाँ पर। देखिए, जीएसटी आने के बाद में कहा गया था सारे शोकाज नोटिस को जल्दी से जल्दी निपटारा करें, बट देयर वर लॉट ऑफ पेंडेंसीज इन सर्टेन कमिश्नरेट्स। सूरत कमिश्नरेट में बहुत ज्यादा पेंडेंसी थी, और वहां से केसेस, आप आश्चर्य करेंगे, 2019 सितंबर के आसपास लगभग 40 केसेस ट्रांसफर होकर के, हमारे एडिशनल कमिश्नर साहब थे श्री एसके सिंह जी, उनके यहाँ पर ट्रांसफर होकर 40 केसेस आए एडजुडिकेशन के लिए, और उन्होंने फिर हम सुप्रीटेंडेंट्स को बांटा था, मुझे भी 10 केस आए थे उनमें से डील करने को। जब केसेस का हमने स्टडी किया, देन वी फाउंड दिस केसेस आर पर्टेनिंग फ्रॉम 1998 टू 2005। आप सोचेंगे कितने पुराने केसेस हैं, खैर कालबुक में पड़े हुए थे, कोई भी रीजन रहा होगा। फाइनली वो केस एडजुडिकेशन जब आए, हमने पीएच देना चालू किया, पीएच का नोटिस दिया, तो पार्टी का रिप्लाई 3 केसेस में ऐसा आया सामने से, सब हमारे यहां पर रेड हुई थी, डॉक्यूमेंट सीज किए गए थे आपकी पार्टी ने, डिपार्टमेंट ने, एंड उसके बाद हमको शोकाज नोटिस मिला है, बट आज तक हमारे जो सीज डॉक्यूमेंट हैं दैट वी हैव नॉट गॉट। और जब सीज डॉक्यूमेंट हमको आज नहीं मिले हैं, then how we can file our defense reply or how we can attend the PS. These were the words used by them. And they requested कि आप हमें relied upon documents या हमारे यहाँ से जो सीज डॉक्यूमेंट आपने किए हैं वो हमको वापस दीजिए, उसके आधार पर हमारी रिप्लाई फ्रेम कर पाएंगे। अब कितना बड़ा लैकुना है, अब ये पार्टी सही कह रही है, गलत कह रही है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। अगर वो ये सही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की कमी रही है कि वो डॉक्यूमेंट्स पार्टी को नहीं मिले। अगर हम उस केस को एडजुडिकेट कर देते हैं, पार्टी के अगेंस्ट जाते हैं डिसीजन, तो कोर्ट में जब चैलेंज होगा मैटर, तो हमारे अगेंस्ट में स्ट्रक्चर्स ही पास होंगे। तो यहां ऐसा केस मैंने देखा। फिर हमने वो क्या किया, सूरत के साथ में करस्पॉन्डेंस किया और उनको एक लेटर लिख करके सारे 3 केस फाइल को हमने वापस कर दिया। भाई इन केसेस में
पार्टी का कहना है कि उनको रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट या जो डॉक्यूमेंट आप सीज करके लाए थे वो नहीं मिले हैं, उनको आप रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न करने के बाद फिर आप भेजेंगे तो हम एडमिट कर देंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहां भी जो सुन रहे हैं मुझे, इन पॉइंट पे जब भी आप प्रिवेंटिव में करें या कहीं भी आप ऑडिट में कोई डॉक्यूमेंट लाएं, प्लीज रिटर्न दोज डॉक्यूमेंट्स बैक टू द पार्टी इमीडिएटली आफ्टर शो कॉज नोटिस इश्यूड, एंड उसका प्रॉपर रिकॉर्ड फाइल में रखें। हमने फाइल का एक एक पन्ना छान मारा, नोटशीट देख ली, कहीं भी रिकॉर्ड नहीं था कि पार्टी को वापस दिया है। देन कंप्लीट एग्जामिनेशन एंड क्लियरेंस ऑफ द एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट एट द फैक्ट्री और वेयरहाउस प्रीमाइसेस। जनरली वी नो भी अभी फैक्ट्री या वेयरहाउस में जाकर के एग्जामिनेशन गुड्स का हम नहीं करते हैं, बिकॉज वहां से एक्सपोर्ट अदरवाइज भी क्लियरेंस अलाउड नहीं है। पार्टी डायरेक्टली अपना सीलिंग करके लेके जाए या आईसीडी में लेके जाए या एग्जिट पोर्ट पे लेके जाए, तो हमें कहीं जाना नहीं है। बट देयर आर सर्टेन सिनेरियोज कि जहां हमें जाना पड़ता है और उसके लिए वो बिफोर हैंड परमिशन हमसे मांगते हैं, और परमिशन अगर किसी ने मांगा है और हम अगर ऐसे वेयरहाउस में फैक्ट्री में गए हैं तो हमें 24 आवर्स ऑफ द रिसीव्ड एप्लीकेशन हमको उनका एक्सपोर्ट अटेंड करके कंप्लीट कर लेना है। एंड ये जनरली कहां पे होता है, जो रिफर कंटेनर्स होते हैं, बिकॉज कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी पोर्ट्स पे नहीं होती, आईसीडी में नहीं होती हैं। तो ऐसे केसेस में जो पार्टी के रिफर कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर ऐसी चीजें डाली जाती हैं जिनको फ्रीजिंग 0 पॉइंट पर या जो भी रिक्वायरमेंट है जरूरी होता है, तो वो अपनी फैक्ट्री में एग्जाम के लिए हमें बुलाते हैं। देन परमिशन फॉर सेल्फ सीलिंग फॉर एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट 10 days फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अगर सेल्फ सीलिंग के लिए किसी पार्टी ने अप्लाई किया है तो हमें विद इन 10 days हमको उसका परमिशन या एप्लीकेशन का निपटारा हमें कर देना है। देन इश्यू ऑफ ऑर्डर्स इन ओरिजिनल ऑब्लिक ऑर्डर्स इन अपील। अब दोनों बात कह दी यहाँ पे, ऑर्डर्स इन ओरिजिनल हो या कोई पार्टी या डिपार्टमेंट अपील में गया हो, अपीलेट ऑर्डर हो, दोनों भी 30 days from the date of conclusion of the personal hearing where all the requisite information is available। आप देखेंगे जब भी हमारा जो पर्सनल हियरिंग हुआ है उसके विद इन 30 days हमको केस का निपटारा कर देना चाहिए। हाँ, सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज हो सकती हैं, बट फॉर दैट जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज हैं, चाहे वो सुपरिटेंडेंट से लेकर के अप टू द कमिश्नर लेवल, जो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज आज की तारीख में एग्जिस्टिंग हैं, उन सबसे मैं एक निवेदन जरूर करूंगा हाथ जोड़ करके, ये पॉइंट पे जरूर गौर करें। बिकॉज मैं कमिश्नर अपील में वर्क किया था नासिन से जाने के बाद 2015 से लेकर के 17 तक, और मैंने एक बहुत बढ़िया जो भी ऑर्डर कैसे बनते हैं आप लोग सब जानते हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। हम कहते हैं ब्रीफ फैक्ट्स बना के रखे, केस के रख दिए गए, केस को डिस्पोजल भी दिखाया गया एक पर्टिकुलर महीने में, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे उसका जो अपीलेट ऑर्डर था दैट वाज इश्यूड एग्जैक्टली आफ्टर 1 year। हमने ऑर्डर भी बना लिया, हमने रजिस्टर में डिस्पोजल भी दिखा दिया, हमारी रिटर्न में भी उसको डिस्पोज दिखा दिया, एंड उसके बावजूद भी ऑर्डर इश्यू नहीं हुआ पार्टी को। 1 साल के बाद वही ऑर्डर इश्यू हो रहा है। तो ऐसे केसेस मैं निवेदन करूंगा सभी जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज यहां बैठी हैं या सुन रही है मुझे, प्लीज इस पॉइंट पे मत फंसिएगा। कल को अगर किसी ने कोई एलिगेशन कर दिया और कहीं ये मुद्दा खड़ा होकर के निकल आया तो हमारे डिपार्टमेंट की जो कायदा कानून है वो हमारे पीछे पड़ जाए। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोविजनल असेसमेंट अगर कहीं है तो 30 days में हमें कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी या सबमिशन ऑफ द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स, जहां 2 कारण हो सकते हैं, हमने प्रोविजनल असेसमेंट पार्टी के रिक्वायरमेंट से किया या सर्टेन कंडीशन फुलफिल नहीं की तो हमने किया। दोनों ही केसेस में पार्टी का इंक्वायरी है वो कंप्लीट हो गया या जो इंफॉर्मेशन उनको नहीं दिया था वो प्रोवाइड कर दिया, तो हम प्रोविजन का फाइनल विद इन 30 days कर दें। सो दीज आर द स्टैंडर्ड्स जो हमारे चार्टर में हमको दिए गए हैं। आई होप आई एम मेकिंग क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट। नाउ हैविंग सेट द स्टैंडर्ड सेट एंड आवर एक्सपेक्टेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, वी हैव टू कमिट आवरसेल्फ। खाली पॉलिसी फ्रेमवर्क में बना दिया, क्लास आज हो गई, जैसा वर्मा सर कह भी रहे थे कि इंप्लीमेंट जब तक चीज को नहीं करेंगे तब तक वास्तव में वो चीज कारगर काम नहीं होती है। सुनने का पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। वी हैव टू इंप्लीमेंट, वी हैव टू अप्लाई दोस रीडिंग्स ऑन अस, और वो एप्लीकेशन होता है जब हम ऐसा करेंगे। वी शैल स्ट्राइव टू इंकरेज वॉलंटरी कंप्लायंस। पहले केस में एक्सपेक्टेशन था वॉलंटरी करें, लेकिन हम इंक्रीज भी करें पार्टी को, भैया तुम अपने आप स्वतः ही कंप्लायंस करो, हम तुमको किसी प्रकार का परेशानी नहीं करेंगे।
टू एजुकेट सिटीजन अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स लॉस। जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हम एजुकेट करें, उनको बताएं इनडायरेक्ट टैक्स लॉस के बारे में, वो चाहे वो कस्टम्स में काम कर रहा हो, एक्साइज में कर रहा हो या जीएसटी में कर रहा हो। इसीलिए आपने देखा होगा जब नया जीएसटी आया था, रेजी सर के साथ मैं भी एक फैकल्टी था एज ए ड्राफ्ट लॉज के लिए, 2016 में हम लोग का ट्रेनिंग हुआ था और ट्रेनिंग के बाद में एज ए टीओटी बन के फिर हम लोगों ने ट्रेड के साथ भी, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को भी, सबको ट्रेनिंग इस तरह से दिया था और उनको एक अवेयरनेस फैलाया था, एजुकेट किया था। उसका मतलब ये नहीं है कि वी आर द मास्टर, नो, हम भी बहुत सीखते हैं, टाइम टू टाइम सीखते जाते हैं और सिखाते भी जाते हैं। वैसे कि वैसे जो सीखते हैं वो भी अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। तो ड्राफ्ट लॉज के बाद में फिर वापस जीएसटी जब रियल में आ गया तो वो लोग फिर से वापस ट्रेनिंग चालू हुई और यहाँ पे भी हमने ट्रेड के द्वारा जो कैंप ऑर्गेनाइज किए वहां पे भी जाके क्लासेस ली, वहां पे भी ट्रेनिंग दी है लोगों को। और आपके यहाँ पे भी लोग आते होंगे इंडिविजुअली रेंज वगैरह में या कहीं भी, वहां पे भी लोकल लेवल पर कमिश्नरेट भी इन चीजों को ट्रेड को बता रही है। तो एक अवेयरनेस, एजुकेशन, देन कंटिन्यूअसली एनहांस सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स। कंटिन्यूअसली हमारा जो सर्विस डिलीवरी का सिस्टम है उसको निरंतर हम सुधार करते रहें। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड अदर असिस्टेंस एट द जीएसटी सेवा केंद्र। तो हमारा जो जीएसटी सेवा केंद्र हमारे बने हैं वहां पर रियल मायने में ऐसे लोगों को बैठा है जो रियल में नॉलेजेबल हो। कई बार हम ऐसा होता है कि जीएसटी सेवा केंद्र या फैसिलिटी सेंटर है, अरे यार ऐसा है, ये काम का नहीं है, इसको यहाँ बैठा दो। नहीं, ये हमारा सोच गलत है डिपार्टमेंट का, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को, ऐसे लोगों को बैठाते हुए जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो वहां ऐसी जगह में भले कम समय के लिए बैठा दें, टेन्योर जल्दी पूरा करा के दूसरे बंदे को बैठाएं, लेकिन जो कायदा कानून अच्छे से समझता हो, जो ट्रेड को रियल में गाइडेंस कर सके, ऐसे लोगों को वहां पे बैठना चाहिए। दैट विल प्रॉपर यूज ऑफ द रिसोर्सेज। और वेबसाइट पर भी जो हमारे cbic.gov.in का जो वेबसाइट है वहां पे भी सारी जानकारियां अपलोड हम करते रहें। और इसमें मैं कहूंगा नासिन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। नासिन के द्वारा जब भी जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था, वीकली बेसिस पे अपडेट्स आते रहे थे और वीकली बेसिस पे क्लासेस भी चलती रही थी और आज भी अपडेशन नासिन की ओर से चालू है। तो नासिन इज रियली डूइंग ग्रेट सर्विस फॉर द इंटायर स्टाफ ऑफ आवर्स। और अभी आप देखेंगे ये चार्टर में नहीं है, मैनुअल में नहीं है, बिकॉज ये कोविड-19 बाद में आया है। अब आने के बाद में ई ऑफिस का कंसेप्ट भी अभी चालू हो गया। तो ई ऑफिस के कंसेप्ट में भी आप देखेंगे यहां भी हमारी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। पहले अगर कोई डॉक्यूमेंट यार मैंने नजरअंदाज कर दिया, ट्रेड आया, उसको समझा दिया, कोई बात नहीं, सेटल हो गया। नाउ एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड में हम उसको हटा नहीं सकते। पहले तो हम फाइल भी रिप्लेस हो जाती थी, पेज भी रिप्लेस हो जाते थे, लेकिन आज वो चीज नहीं है। सो वी हैव टू एक्स्ट्रा अलर्ट नाउ डेज, और वो हमारी स्किल्स को एनहेंस करके ही हम अपने आप को एक्स्ट्रा अलर्ट कर सकते हैं। That now comes the grievance redressal system। अभी देखिए कहीं जब हम काम कर रहे हैं, सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं, तो कहीं के लेकुनाज, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, सिस्टम में कहीं कमियां हो सकती है, टाइमली डिलीवरी नहीं हुआ हो, तो जिस रूप में चाहिए उस रूप में नहीं हुआ हो, तो व्हाट एवर वे, जब भी कभी कोई ग्रीवेंसेस खड़े होते हैं उनका हमें एक्नॉलेजमेंट करना चाहिए विद इन 4। एक चीज बता दो, जो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल की मैं बात कर रहा हूं, वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ सेवोत्तम, बिकॉज क्लास सेवोत्तम का है। तो ये ग्रीवेंसेस किसके आएंगे? जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके आएंगे, ना कि हम एज ए डिपार्टमेंट में रिड्रेस फाइल करें, वो एक अलग इश्यू है, उस साइड में मैं नहीं जाऊंगा। सो ट्रेड के जो ग्रीवेंस आते हैं हमारे पास, उनको हमें एक्नॉलेजमेंट करना है विद इन 48 आवर्स। अगर ऑनलाइन आया है तो इमीडिएट अपने आप एक्नॉलेजमेंट हो जाता है। अगर किन्हीं कारणों मैनुअल आया है तो हमें 48 आवर्स में एक्नॉलेजमेंट कर देना है। एंड विद इन 30 डेज हमको अटेम्प्ट करना है अपने आप पे कि कैसे भी करके 30 डेज के पहले उसकी रिप्लाई हम दे दें। और अगर किन्हीं कारणों से नॉट सेटिस्फैक्टरी हुआ पार्टी, क्लाइंट हमारी जो रिप्लाई हमने दी उनको सेटिस्फाइड नहीं है हमारे ग्रीवेंस रिड्रेसल से, इन दैट केस विद इन 15 इन ओपन हाउस मीटिंग्स। इसी अलावा आप देखो जो हमारी मीटिंग्स होती हैं, पीजीसी होती है, पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी, कस्टम्स क्लियरेंस फैसिलिटेशन कमेटी होती है, परमानेंट ट्रेड फैसिलिटेशन कमेटी होता है, और ज्यादातर जो सब जानते हैं बहुत फेमस है
RAC की मीटिंग, रीजनल एडवाइजरी कमेटी मीटिंग, तो यहाँ पे जो भी ट्रेड अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती है तो हमारे सीनियर अधिकारी बैठते हैं, बड़े आदर सम्मान से उसको सुनते हैं और वहां जो सोल्यूशन निकलता है वो देते हैं। इसमें और इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमारा जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसके अंदर में जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं पब्लिक ऑफिसर्स के, वो भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल होना चाहिए। मैं कल ही वेबसाइट विजिट कर रहा था तो अभी भी मैं देखा कुछ कमिश्नरेट के अवेलेबल हैं, कुछ के नहीं है। ये जो भी किस कमिश्नरेट में कौन पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर है, दो डिटेल्स उनके कॉन्टेक्ट वहां अवेलेबल हमारे होना चाहिए और हर एक कमिश्नरेट को अपने यहाँ पे अपलोड करना चाहिए। एंड वेरी गुड नोट इज गिवन, इंफॉर्मेशन required to be published under section 41B of RTI Act are made available on the website। हमारा जो वेबसाइट है, जो इंफॉर्मेशन हम 41, देखिए RTI का सेक्शन 41A कहता है कि सारे रिकॉर्ड्स को हम डिजिटल कर लें, कैटलॉग कर लें, डिजिटल फॉर्म में मेंटेन करें, और 41B कहता है कि उन डिजिटल जो रिकॉर्ड हमने किया है और जिसको हम इजीली बिना किसी बंदिश के, जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं है, उसको हम वेबसाइट पे अपलोड कर सकें, तो सेक्शन 41 हम उस सिस्टम में कर दें वेबपोर्ट, सो दैट जब कभी भी किसी को जरूरत है दे कैन जस्ट गेट इट, तो आरटीआई भी हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। देन द स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस डिलीवरी अंडर जीएसटी आर एप्लीकेबल, मुटाटिस मुटांडिस टेक्निकल वर्ड है लीगल का, और ये कहते हैं जो सर्विस टैक्स या एक्साइज के पुराने मैटर्स हैं उनके लिए भी इक्वल एप्लीकेबल है। फॉर अदर सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल आल्सो बी ऑब्जर्व्ड। इन एडिशन अगर कुछ और सर्विस लाइन दी जाती हैं करें। एंड डिटेल्स ऑफ द पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर्स, दो चीज होती है, एक तो अपलोड करना होता है, एक अपडेट करना होता है। मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूं इन चीजों को, वैसे तो आप लोग सब जानते हैं, यू आर ऑल इंटेलिजेंट ऑफिसर्स, बट हमारे आरटीआई के अधिकारी जो भी पीआई हो उनका एक बार अपलोड कर दिया नाम, हमारे कई बार कमिश्नर का या चीफ कमिश्नर आपका पूरा डिटेल अपलोड कर दिए, वो लोग ट्रांसफर हो जाते हैं, उसके बाद हम अपडेट नहीं करते हैं। तो सिस्टम अपलोड भी होना चाहिए एंड टाइम टू टाइम व्हेनेवर देयर आर चेंजेस हैज टू बी अपडेटेड। CBIC had taken the concrete step to improve the public service delivery systems। जो सिटीजन चार्टर था उसको पूरा रिवाइज कर दिया और स्टेक होल्डर के हाथ में कंसल्टेंसी करके उनको ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद में CP ग्राम लेके आए, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म सिस्टम और मॉनिटरिंग सिस्टम यू कैन से। एंड ये एक रोबस्ट सिस्टम है, वो वर्षों से काम कर रहा है, अच्छे से डिलीवरी इसमें हो भी रही है। एंड एम एट प्रोवाइडिंग टैक्सेबल टैक्स पेयर सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ द टाइमलीनेस and delivery, single window facility, trade facilitation and proactive feedback collection। This is very important। जो हमारा feedback collection है वो अगर proper हो रहा है, that is very much necessary। तभी हमें पता लगेगा हमारा सिस्टम बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब बहुत बड़ी जर्नी CBIC ने की है सेवोत्तम के तहत, या मैं डिटेल जाऊंगा टाइम के हिसाब से, तो देता हूं आप समझ जाएंगे। तो अभी चार्टर हमने रिवाइज कर दिया है। देन किसी प्रकार की डिले के पार्ट पे करी होती है, वो कहीं न कहीं प्रोडक्शन की कॉस्ट में, सप्लाई चेन में इंपैक्ट करती है। और ये पॉइंट जो CII है, फिक्की है, PhD CCI है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड के एसोसिएशंस हैं, इन्होंने बार बार ये मुद्दे उठाए हैं। तो कहीं न कहीं सप्लाई चेन की कॉस्ट को नहीं बढ़ाएं, इसलिए हमारे डिले नहीं होना चाहिए डिसीजंस में या कम्युनिकेशंस में। और जो प्रायोरिटाइज किए गए फंक्शंस उनको हम टाइम से पूरा करें, चार्टर को हम सिटीजन के को फॉलो करें। क्या है आप सब जानते हैं, इसको किसने बनाया है? डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के द्वारा ये लाया गया है, और NIC NAT के द्वारा ये प्लेटफॉर्म पर है, और NIC संस्था है जो इसको सिस्टम को चलाती है। ऐसे किसी को ग्रीवेंस फाइल करना है उसके लिए सिस्टम है। जिस व्यक्ति को एज ए क्लाइंट हमारा
अगर किसी प्रकार का कंप्लेंट ग्रीवेंस लॉन्च करना है तो उसको पहले एज ए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, यूजर रजिस्ट्रेशन उसका होगा, वो क्लाइंट है हमारा तभी वो कर पाएगा। एंड दूसरा सीपी ग्राम में भी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वहां पे उसको यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और उसके आधार पर लॉग इन करके अपना जो भी उसको ग्रीवेंसेज हैं वो अपलोड कर सकता है। और इसके बारे में सीपी ग्राम का यूजर मैनुअल टैक्स पेयर सर्विसेज के अंदर में सीपी ग्राम का यूजर मैनुअल भी पोस्टेड है, साइट पर हम देख सकते हैं। देन सेकंड पॉइंट, इंप्लीमेंट सीपी ग्राम, जो रोबस्ट सिस्टम हमने बनाया उसको इंप्लीमेंट करें। सीपी ग्राम इज एन आईटी सिस्टम that needs proactive response from the field officers to deliver effectively. So the senior field officers have also been brought on board by creating a sense of accountability towards grievance redress. ये ऐसा नहीं है सिर्फ लोअर ऑफिसर को ही ये बताया जा रहा है, सीनियर ऑफिसर्स के भी इसी प्रकार से अलग हायर लेवल की उनकी अलग अलग क्लासेज होती हैं, तो वो भी स्ट्रेस किया जाता है सीनियर अधिकारियों को भी कि इन डेडली टाइमलाइंस को हम फॉलो करें। टाइम टू टाइम सीनियर अधिकारी हमें सेंसिटाइज भी करते हैं, हमारे जो भी कमांडिंग हैं चाहे वो कमिश्नरेट में हैं चाहे एडिशनल लेवल पे हैं, डिवीजन लेवल पे हैं, वो सभी अधिकारीगण हमें बताते रहते हैं, बार बार सेंसिटाइज करते रहते हैं, भाई यहाँ पे कमी नहीं रहे, नहीं तो हमारी कमिश्नरेट का नाम बदनाम होगा। इसीलिए हमें एफिशिएंट 48 आवर्स और विद इन 30 डेज हमें निपटारा करना है। डेवलप सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी ऑफ द कमिश्नरेट, हर कमिश्नरेट के स्टाफ को इतनी ट्रेनिंग हम दें कि हर फील्ड में वो मास्टरी उसकी हो, कैपेबल वो रहे और कैपेबल होते होते एसक्यूएम में जो दिया गया डेडली टाइमलाइन उनको वो फॉलो करते हुए पूरा करें। और इसका एक पायलट प्रोजेक्ट 2009 में चला था और उसके तहत 2005 में जो लेके आए थे आईएस स्टैंडर्ड वो फॉलो हुए थे एंड उसके बाद में नाउ ये आ गया है 2018 का आईएसओ सिस्टम। कैपेसिटी बिल्डिंग टू मीट द सेवोत्तम ऑब्जेक्टिव्स, इसके लिए जो नासिन है, अगेन आई से नासिन इसमें बहुत रोल अच्छा प्ले कर रहा है एंड आई ऑल्सो एप्रिशिएट डीजीटीएस टैक्स पेयर सर्विसेज के जो डीजी साहब हैं उनके माध्यम से भी ये ट्रेनिंग अगर हो रही है कमिश्नरेट के लिए तो बहुत ही अच्छा है कि कम से कम हमें सर्विस क्वालिटी मैनुअल के बारे में थोड़ी जानकारी हो रही है और अगर हम डाउनलोड करके उसको पढ़ लेते हैं तो पूरा हमको सिस्टम समझ में आएगा। मैनुअल हैज सेट द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, पूरा प्रोसीजर उसमें दिया गया है। नाउ एज पर एज सेवोत्तम क्लास इज कंसर्न वो यहाँ पे पूरा हुआ, लेकिन मैंने साथ में थोड़ा सर्विस क्वालिटी मैनुअल के बारे में कुछ स्लाइड्स लिए हैं, तो जल्दी जल्दी मैं उन स्लाइड्स को भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। पहला तो एक ले डाउन प्रोसीजर किया है सर्विस मैनुअल के द्वारा, सिटीजन चार्टर बताया गया, उसमें गाइडलाइंस क्या दी गई हैं वो उसके अंदर सेट की गई हैं। हमारा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या है एसपीएम के अंदर, टू प्रमोट ए सर्विस अप्रोच, ऐसी प्रोसेस जो सर्विस अप्रोच हो टू द क्लाइंट, टू द कस्टमर। देन रिक्वायरमेंट बेसिक क्या है, कंप्लेंट्स हैंडलिंग प्रोसेस होना चाहिए एंड वो प्रोसेस मैनुअल के द्वारा कवर्ड होना चाहिए एंड इट इज नॉट एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड। ये पॉइंट मैंने राइट किया है कि यहां जो सीपी ग्राम किया एसपीएम में जो बात कर रहे हैं हम कंप्लेंट हैंडलिंग का, इट इज नॉट रिलेटेड विद द स्टाफ। स्टाफ का मैकेनिज्म हमारा डिफरेंट है, यहां हम स्टेक होल्डर यानी हम बात कर रहे हैं क्लाइंट यानी हमारी ट्रेड के साथ। और अगर कोई केस बाहर चल रहा है आउटसाइड देन सीबीआईसी कोर्ट में चल रहा हो तो अगेन उसके लिए कंप्लेंट हैंडलिंग यहां पे नहीं है। देन इंटेंडेड यूजर्स कौन है, देयर आर टू कैटेगरी, टू यूजर्स। नंबर वन इज द सीबीआईसी कस्टमर्स यानी जो हमारे क्लाइंट्स हैं एंड नंबर टू इज द डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स। सो दीज आर टू पर्संस जो हम कहते हैं जिनको एज ए इंटेंडेड यूजर बनाया गया। तो कस्टमर के लिए हम प्रॉपर मैनुअल में चीजों को इतना सिंप्लीफाई करके लिखें कि उनको सिटीजन चार्टर समझ में आए, वो समझे, सर्विस क्वालिटी पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो भी वो देख के पढ़ सकें, समझ सकें, इसीलिए वेब पोर्टल पर डाला है। एंड उसके बाद फर्दर कस्टमर कैन आल्सो यूज दिस मैनुअल टू नो सीबीआईसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उन्हें पता लगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, अगर मेरी किसी मुद्दे पे कंप्लेंट मुझे करनी है तो मैं किसके पास करूं, तो ये सारा कुछ उसमें डिटेल हमें मिलता है। डिपार्टमेंट के अधिकारी जो आप बैठे हैं उनके लिए क्या है कि हमारा जो सीबीआईसी ने कमिटमेंट किया है और हमारे ऑब्जेक्टिव हमको सेट किए हैं उनको हम डिलीवरी क्वालिटी सर्विस के द्वारा मीट करें। और मैनुअल में जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जो प्रोसीजर दिए गए हैं, वहां पे ओनरशिप वर्ड यूज किया गया है। ओके, ये प्रोसेस का ये ओनर है, ये प्रोसेस का ये ओनर है, तो जिस लेवल का अधिकारी है
जिस लेवल का उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स दिया गया है मैनुअल एक्ट के द्वारा, वो उसका प्रोसेस ओनर होता है। उसके अंडर में कार्य निष्पादन समय पर होना चाहिए। डिवीजन के केस में अगर कोई कार्य रिफंड का है तो एसी कंसर्न इज द प्रोसेस ओनर। अगर रेंज के लेवल का कोई कार्य है जो सुपरिटेंडेंट सक्षम है पूरा करने के लिए, देन रेंज सुपरिटेंडेंट इज द ओनर। इसी तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारा होना चाहिए, एंड दैट कम्युनिकेशन प्रोसेस कैसा होना चाहिए? इट शुड बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेटेड टू सर्विसेज, सिटीजन्स, चार्टर एंड ग्रीवेंस हैंडलिंग। ये हमारा एकदम प्रॉपर कम्युनिकेशन हो। नाउ इसके लिए डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट्स कहा गया। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट? सीबीआईसी ने कहा है सर्विस क्वालिटी मैनुअल हो, सिटीजन चार्टर हो, क्वालिटी प्रोसीजर्स हो, सर्विस के प्रोसीजर्स हो, और रिक्वायर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैंडर्ड हो। ऐसे रिकॉर्ड हम मेंटेन करें। काफी अभी अब जो इसमें नहीं आए होंगे अभी भी क्वालिटी में, उनको अपना स्टैंडर्ड क्वालिटी लेना पड़ेगा। देन सर्विस क्वालिटी मैनुअल कंटेन्स स्कोप ऑफ सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, सर्विस क्वालिटी पॉलिसी, सर्विस क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड कंप्लेंट्स हैंडलिंग सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटीज। देन डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स फॉर, ऐसे प्रोसीजर्स जो डॉक्यूमेंट किए गए हैं। कंट्रोल किस डॉक्यूमेंट का किसके पास है, किस रिकॉर्ड का कंट्रोल किसके पास है, कंप्लेन हैंडलिंग किसके द्वारा हो रही है, हु इज कंट्रोलिंग द कंप्लेंट्स, एंड द वेरियस सर्विसेज ऑफर्ड बाय सीबीआईसी एंड सिटीजन चार्टर। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स कंटेंट। एंड इनका आप देखेंगे तो SQM include the within its scope all functions related services given in the citizen charter। तो सिटीजन चार्टर में जो दी गई है वो सारा है तीनों पोर्शन में। गुड्स के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, तीनों के लिए ये सारी चीजें एप्लीकेबल इक्वली होती हैं। एंड ऑल फील्ड फॉर्मेशंस के रोल डिफाइन किए गए हैं। सर्विस क्वालिटी की पॉलिसी है, उसका एक अपना क्वालिटी होना चाहिए। दैट कैन बी CBIC has committed to encourage, facilitate, assist existing and potential taxpayers to validly discharge their tax obligations. At the same time, ये achieve करेगा through constant monitoring of service delivery channels, customer feedbacks, motivations, transparency, continuity, improving reliability levels of the intended processes, identifying opportunities फॉर द इम्प्रूवमेंट। ऐसा होना चाहिए। और अल्टीमेटली आप देखेंगे हम अपेक्स लेवल पे हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइडेंटिफाइड सेट सर्विस डिलीवरी बेंचमार्क्स। इसीलिए आप देखो अपेक्स लेवल पे बेंचमार्क सेट कर दिए गए, स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए। उसके बाद में आइडेंटिफाई सर्विसेज को कर लिया गया, आइडेंटिफाई स्पेसिफिक यूनिट्स को कर लिया, कौन सी फील्ड फॉर्मेशन क्या रोल प्ले करेगी, एंड उस कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए क्या लीगल या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हमारे होंगे। एट यूनिट लेवल पर टू मीट एंड इंप्रूव सर्विसेज डिलीवरी इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड सिंगल विंडो फैसिलिटी, प्रोवाइड एंड इंप्रूव एक्सेसिबल फैसिलिटेशन सेंटर्स, इंप्रूव कस्टमर परसेप्शन। हमारे प्रति जो परसेप्शन था, अरे ये डिपार्टमेंट तो ऐसा है ना वैसा है, काम नहीं करता है, कितना भी कह लो, वो बदलना है। एंड दैट कैन बी एट यूनिट लेवल। एंड देन ग्रीवेंस हैंडलिंग ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे ग्रीवेंसेस हैं उनको हम कैसे हैंडल करें, उसमें हमेशा इंप्रूवमेंट लाते रहें और 30 डेज के अंदर हम उसको करते जाएं। देन रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी डिफाइन की गई अपेक्स लेवल में, SQM के 3.1 में की गई हैं। यूनिट लेवल में प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल एट यूनिट लेवल, और नोडल ऑफिसर होते हैं। देन पोस्ट कैपेबिलिटी क्रिएशन, वो कंटिन्यूस DGTS फॉलो करते हैं। अगर किसी का SQM में जो सिस्टम दिया गया है ISO सर्टिफिकेट नहीं हुआ है, देन ये स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ISO सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। पहले महीना है उसमें सेंसिटाइज होगा पूरा स्टाफ का, दूसरे महीने में TOT क्रिएट किए जाएंगे। ट्रेनर्स रहे जो ट्रेनिंग दे पाए, ऐसे हम ट्रेन क्रिएट करें डिपार्टमेंट में 5 से 6, और क्रिएट एंड स्टेबलाइज सेवोत्तम प्रोसेस, ऐसा सेवोत्तम प्रोसेस क्रिएट करें और उनको स्टेबलाइज करें। तीसरे महीने में स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें और प्रोसेस को मॉनिटर करें, उनको स्टेबलाइज करें, कंट्रोल्स को प्लेस में लाएं। चौथे महीने में 2 मंथ्स सस्टेन परफॉर्मेंस को देखें कि 2 महीने तक हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, एंड उसके बाद में एक इंटरनल ऑडिट हमारी हो
5वें महीने में एक रिव्यू हो मैनेजमेंट के द्वारा कि अभी तक जो हमने 5 महीने में किया है उसका हम रिव्यू करें, एंड 6ठे महीने में जब सारा कुछ सेट हो जाता है वी कैन अप्लाई फॉर BIS सर्टिफिकेशन ऑफ IS 15700 2018 एंड इम्प्लीमेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, अभी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। DGTS, हाँ यहाँ एक थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं। एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया सिटीजन चार्टर के लिए, जब सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेते हुए DGTS की जो चेयरमैन है, हमारे जो DG साहब हैं टैक्स पेयर सर्विसेज के, ही इज द चेयरमैन ऑफ दिस वर्किंग ग्रुप, और उनके अंडर में सिटीजन चार्टर ये तैयार किए जाते हैं या अमेंडमेंट किए जाते हैं। और DGTS हेडेड कोर ग्रुप, अगेन एक मैनेजमेंट कमेटी है, उनको अगेन DGTS हेड करते हैं। देन कम्स द नोडल ऑफिसर, तो DGTS के नीचे नोडल ऑफिसर्स होते हैं जो इन चीजों को इंप्लीमेंट कराते हैं और BIS स्टैंडर्ड को लेने में मदद करते हैं, सर्विस डिलीवरी सिस्टम को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। सो फ्रॉम माय साइड सर दिस इज द एंड्स। आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, एंड आई होप काफी कुछ मैंने बताया है, आपको क्लियरिटी हुआ होगा टॉपिक का। पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर देयर इज अ क्वेश्चन इन द चैट, मैं आपको, उन्होंने होस्ट को भेजा था, आई विल सेंड इट टू यू सर, आप एक बार। Okay, I'll just read out the question. हाँ मैं देख रहा हूँ सर। आई हैव वन क्वेश्चन, हाउ टू गेट BIS सर्टिफिकेट और अपडेट इट इफ ऑलरेडी हैव इट, प्लीज गाइड ऑन दिस। हाँ देखिए, ये अगर आपका ऑलरेडी है, पहला चीज तो जो पहले 2005 के जो अपडेटेशन हमारे हुए थे, जिन्होंने IS और ऑलरेडी स्टैंडर्ड ले लिया गया था, उसकी लिस्ट आपको ये जो SQM में कह रहा हूँ सर्विस मैनुअल, इसी में कमिश्नरेट की लिस्ट दी गई है, किस किस कमिश्नरेट को ऑलरेडी सर्टिफिकेट मिल चुका है, नंबर 1। नंबर 2, 2016 तक का ये अपडेशन है, 31 मार्च 2016 तक का, जहां पे बताया गया इन लोगों ने ऑलरेडी BIS नॉर्म ले लिया है। तो जो ऑलरेडी BIS नॉर्म ले लिया है उन कमिश्नरेट में सिर्फ हमें अपग्रेड करना है 2018 के लिए। तो 18 वाला SQM हम अगर देख लेते हैं तो अगेन हमारा सिस्टम उसी तरह से इंप्लीमेंट हमें करना है जैसे हमने पहले किया था। और जो लोग उसमें नहीं फाइल करते हैं, जो कमिश्नरेट उस लिस्ट में नहीं है, देन दे हैव टू स्टार्ट अपना सिस्टम। जो मैंने बताया था, जो स्लाइड मैंने दिखाई थी 6 महीने का कंसेप्ट जिसमें दिया गया था, दैट यू हैव टू स्टार्ट अफ्रेश फ्रॉम योर ओन कमिश्नरेट इटसेल्फ। एंड DGTS के पास में भी इस टाइप की लिस्ट जरूर होगी, क्योंकि वो मॉनिटरिंग एजेंसी हैं, कि वहां पे लिस्ट होगा कौन कौन कमिश्नरेट में ऑलरेडी ये इंप्लीमेंट हो चुका है। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर आपके PPT भी मांग रहे हैं सर ऑफिसर्स। हाँ, जो मुझे रिक्वेस्ट करेंगे मैं उनको भेज दूंगा। सर आपका नंबर शेयर कर दीजिए सो दैट किसी को चाहिए तो दे गेट इन टच विद यू। हाँ शेयर हो गया है सर। सर अतर सिंह साहब का नंबर से शेयर किया है। अगर किसी को चाहिए तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपना ईमेल आईडी भेज देंगे तो आई कैन फॉरवर्ड द PPT। सर देयर इज अनदर क्वेश्चन आल्सो, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन कैन बी आस्क्ड। देखिए CP ग्राम में थर्ड पार्टी का मैटर नहीं है। CP ग्राम जो होता है, मैं सपोज क्लाइंट हूं और रेजी सर मेरे जो रेंज है उसके इंचार्ज है, ही इज द सुपरिटेंडेंट और ही इज द AC ऑफ द डिवीजन और ही इज द कमिश्नर ऑफ द कमिश्नरेट, और मैं एक ट्रेड का बंदा हूं। तो मेरे जो रेंज में काम हुआ या डिवीजन में काम हुआ या कमिश्नरेट में काम हुआ, मेरा वो काम ठीक से अगर नहीं हुआ, देन आई फाइल द CP ग्राम। और जो मैं CP ग्राम फाइल करूंगा तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसको देखेगा और वहां से मुझे उसका सॉल्यूशन आएगा। तो यह थर्ड पार्टी का लिंक नहीं है, मैं डायरेक्टली ही कर रहा हूं, मैं ही अफेक्टेड पर्सन हूं जिसका ग्रीवेंस मैं फील कर रहा हूं और मेरे ग्रीवेंसेस को मैं लेकर के
रेजी सर के पास जा रहा हूं एज ए ऑथराइज पर्सन, और वो मुझे उसका सॉल्यूशन देता है. सो दैट द सीपी ग्राम means it is not to be confused with RTI, right, sir? RTI इज सेपरेट, RTI इज इंटायरली डिफरेंट. वहां पे थर्ड पार्टी का कंसेप्ट आता है. एंड दूसरा मैंने एक चीज और बताई जो एसक्यू में क्लियरली लिखा है, ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफिसर्स के लिए नहीं है, ये प्योरली ग्रीवेंसेस फॉर द क्लाइंट्स, यानी हमारी जो ट्रेड है उसके ग्रीवेंसेस के लिए हैं. बट यस, अदरवाइज भी अगर आप अपने ग्रीवेंसेस कहीं हाईलाइट करना चाहते हैं, प्रोसीजर रिमेन्स द सेम. सीपी ग्राम में आप जाके पोर्टल पे जाओगे, अपना लॉगिन करोगे, पहले लॉगिन आईडी क्रिएट करोगे, उसके बाद में आप अपना डिटेल, अपना जो भी ग्रीवेंस फाइल करोगे, आपके पास एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, देन यू विल गेट द आंसर आल्सो. सर जी, सीपी ग्राम में अगेन मैंने कहा थर्ड पार्टी का मैटर नहीं है. एनी एग्जाम्पशन इज देयर फॉर द थर्ड पार्टी अंडर सीपी ग्राम्स. थर्ड पार्टी का कंसेप्ट आरटीआई में है, सीपी ग्राम के अंदर में नहीं है. हाँ, ये चीज हो सकता है अगर मेरा ग्रीवेंसेस इस टाइप का है कि वो रिलेट टू थर्ड पार्टी करता है, तो ये डिपेंड करेगा ऑथोरिटी उसको सीपी ग्राम में क्या रिप्लाई देता है. अगर वो ऐसा उनको लगता है दिस रिप्लाई कैन बी गिवन, तो वो कर सकते हैं, और दे कैन आल्सो डिनाई इट. तो थर्ड पार्टी का कंसेप्ट आरटीआई में है. सीपी ग्राम का तो सिंपल है, जैसे कई जगह हमारी कंप्लेन कई बार हो जाती है. अभी से फॉर एग्जाम्पल को नाउ रेजी सर इज द पर्सन जो मेरे रेंज के सुपरडेंट हैं, और मैं एक ट्रेडर हूं, और मेरा इनके प्रति कुछ ग्रीवेंस हो गया, वट एवर ग्रीवेंस हुआ, इन्होंने मेरा काम टाइम से नहीं किया, इन्होंने डिले किया, इन्होंने कुछ मेरे को और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं किया, इन दैट केस मैं इनके अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल करता हूं. सो दैट कंप्लेन विल गो टू हिज कमिश्नर. वो सीपी ग्राम की जो कंप्लेन है सेंट्रलाइज होती है एंड डायरेक्टली कमिश्नर के पास आती हैं, एंड कमिश्नर डे टू बेसिस पे एवरी टाइम उसको देखते रहते हैं. भले ही वो उनके पीए देखें, वो अलग इश्यू होता है, बट वो देख रहे हैं ऐसा रिकॉर्ड में माना जाता है. तो दैट में रजिस्टर के जो कमिश्नर हैं वो उसको ग्रीवेंसेस को मेरे को पढ़ेंगे. पढ़ने के बाद वो भी जो भी अंडर में एडिशनल साहब होंगे या जेसी साहब होंगे या ईसी डिवीजन होंगे, जहां भी वो मैटर फाइल करता है, वहां से डील करवा करके वो रिप्लाई मुझे आएगी, मेरा ग्रीवेंसेस का सॉल्यूशन मुझे आएगा. सो दैट इज हाउ सीपी ग्राम वर्क्स. I think no more questions are coming. राणा सर, अगर आप हो तो वी कैन प्रोसीड. सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है. आप सर मोबाइल से कनेक्टेड हो तो यू कैन यूज दैट मोबाइल. यस सर. Now it is audible. यस सर. आई थिंक यू मे हैव टू होल्ड इट क्लोजर टू योर क्लोजर, या फिर उसका स्पीकर. Yeah. Yes sir, now you are audible. Okay. Acha, now I thank Mr. Atar Singh for a nice and detailed presentation, and the participants will be benefited by their presentation. And we hope in the future all the commissionerate will be BIS compliant in a short period of time. Yes sir. Thank you so much sir. Yeah. I thank the participants. And I thank our ADG sir, Rajesh Verma sir, and our ADG Dr. Tyagi sir. Thank you all. And with the permission of our Verma sir, we can conclude this presentation. Even I thank Reggie sir also. Thank you sir. Thank you so much. Yeah. Can we conclude, sir? I think it is time that we can end it. And it has been a very interactive session. I think there's a difficulty in voice, so without saying anything more, I think we can end it here. Thank you so much sir.
Thank you, sir. Thank you so much.